चरवाहे रात के समय में भेड़ों की रखवाली कर रहे थे और दो स्वर्गदूत उनको आकर मिलते हैं और उनको कहते हैं कि मसीहा बेथलहम में जन्म लिया है, जाकर देखो। This place is called Beth Sahur. It's next to Bethlehem. इसको कहते हैं बेतसहूर, ये बेथलहम से बाजू में है। Two main stories for this place. दो कहानियां हैं इस जगह के बारे में। The first one, you all know the story of Boaz and Ruth. कितने लोगों को बोआज और रुत की कहानी पता है? Naomi? Yes. When Ruth comes here and she meets Boaz in a field, जब रूत यहाँ पर आती है और बोआज को खेत में मिलती है, he falls in love with her and they get married. और वो दोनों की शादी हो जाती है And then they have a baby. और उनको एक बच्चा हो जाता है। And this baby's name is Obed. ओबेद। Obed meets his soulmate, another lady, when he gets older, and they get married and they have another baby. And the baby's name is Jesse. And Jesse meets another woman and they get married and they have a baby, David. So the beginning of the story of David, where did it happen? In this दाऊद राजा की कहानी कहाँ से शुरू होती है? यहाँ से। तो रूत और बोआज से ओबेद उत्पन्न हुआ, ओबेद से जस्सी और जस्सी से दाऊद राजा। This is the place, this is the field where Ruth met Boaz. This is the field. हाँ, बवाजचं शेत म्हणू शकतो आपण याला, बवाज की खेती। एरिया जो असेल ना, म्हणजे ठराविक हेच नाही, पण हा एरिया म्हणजे हे सगळे शेती जी आहे ये पूरा जैसे एक पहाड़ जैसा था, तो यहाँ पे पूरी खेती हुआ करती थी और जो चरवाहे यहाँ पर अपनी भेड़ों को चराने आते थे, इसलिए दाऊद राजा भी भेड़ों को चराता था। Okay? Now, the beginning of the story of David started it here. And the beginning of the story of Jesus started it here. Who are the first one to know about the birth of Jesus? And where were they? The same place. आप समझे, दाऊद राजा की जीवन की कहानी भी यहाँ से शुरू होती है और यीशु मसीह के भी जीवन की कहानी यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि जो चरवाहे थे, यीशु मसीह के जन्म का पहला संदेशा किसको मिला? चरवाहों को। And as we know, and the Jews knows, the Messiah has to be a descendant of David. And the stories are the same place. सबको पता है कि दाऊद उनका जो मसीहा है, यहूदी लोगों का ये विश्वास है कि उनका मसीहा जो आने वाला है वो दाऊद के घराने से आएगा, और फिर आ चुका था। Now, why do you think the first ones, the luckiest ones who are notified about the birth of Jesus were the shepherds? आपको क्या लगता है कि सबसे पहला शुभ संदेश यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का चरवाहों को क्यों दिया होगा? What about the poor people? They were poorer than them. Why not the poorer than them? Because David जो थे वो shepherd थे। David was a shepherd, Jesus was a shepherd, Moses was a shepherd. I have so many shepherds in the Bible and the Old Testament. Okay, listen to this. You want to translate anything or they know? भैया, प्रभु यीशु भी भेड़ों के चरवाहे हैं। Okay, listen to this. Remember what I told you yesterday in the bus about the sacrifices? That the sacrifice that the people take to the temple has to be bought from some certain places, certified, right? Remember that? मंदिर में जो भेड़े या जो भी प्राणी बलिदान किए जाते थे, वो ऐसे ही रैंडमली नहीं लेके जा सकते कि मेरे खेत का है तो मैं लेके जाऊंगा, नहीं। तो वहाँ पर भी अथोराइज्ड डीलर्स थे या अथोराइज्ड शॉप्स थी, दुकानें थी, वहीं से वो भेड़े या जो प्राणी है
वो याजक के पास लेके जाते थे और वहाँ पर बलिदान करते थे। तो फिर मेरे खेत का नहीं, कल उन्होंने बताया था, काल ने क्या सांगितलं होतं? कल उन्होंने बताया था कि बलिदान के लिए जो भेड़े या प्राणी लेके जाते थे वो एक अधिकार क्या कहते हैं, अधिकृत भेड़शाला से ही लेके जाते थे। The name of this place before long time ago, 2,000 and 3,000 even ago, was the Tower of the Herd, of the cattle. You know what herd means? कड़प, लाइक ये जो 2-3 हजार साल पहले या ये जो जगह थी इसका नाम ये था कि टावर ऑफ द हर्ड ऑफ, मतलब जो प्राणियों का कड़प या प्राणी, बहुत सारे प्राणी इकट्ठा होते हैं उसको कहते हैं। Because here was a big tower, and one of the 3 shepherds that the angel appeared to them would be on top of the tower, and 2 down between the lambs and the goats and the herd. Okay? Whenever the one on the top sees a pregnant one delivering a baby, they will tell the 2 and they will take the baby inside the tower. सो यहाँ पर एक बहुत बड़ा से टावर हुआ करता, 3 चरवाहे हुआ करते थे, एक टावर हुआ करता था जैसे मचान हुआ करती है हमारे खेतों में, और एक जो चरवाहा है वो उस टावर के ऊपर रहता था, और जो 2 थे वो सारे भेड़ों बकरियों में रहते थे। तो ये जो ऊपर का था ये हमेशा देखता था कि अगर कोई भेड़ प्रेग्नेंट है, पेट से है, और अगर बच्चा जनने वाली है तो वो ऊपर से देखता था कि वो अब बच्चा जनने वाली है। और Why they will put him inside the tower? Because it's a baby and they don't want the baby to be wounded or injured by the big ones. सो जब भी कोई भी भेड़ या बकरी बच्चा जनने का समय आता था तो ये जो चरवाहा है उसको उस टावर के अंदर, जैसे मचान रहेगा उसके अंदर लेके आता था, क्योंकि अगर समझो बच्चा पैदा हो गया और बाकी जो भेड़े हैं या बाकी जो प्राणी है उसको जख्मी ना करे, उसके ऊपर उसको उसके नुकसान ना पहुंचाए, इसके लिए जो उसकी बेसिकली जो उसकी प्रसूति हुआ करती थी वो एक सेफ जगह ये चरवाहे किया करते थे। Why is that? Because they want the baby to get older, clean, no wound, not lame, nothing on it but a clean lamb. कि क्यों ऐसा करते थे? क्योंकि उनको जो बच्चा पैदा होता था बड़ा होने के बाद ऐसा भेड़ या बकरी चाहिए हुआ करती थी कि जिसमें कोई भी व्यंग नहीं है, हाँ, कोई भी लंगड़ा नहीं, लूला नहीं, अंधा नहीं, या किसी भी उसमें कोई भी शारीरिक प्रॉब्लम ना हो। And after this lamb is big, they will stamp him. They will stamp it as a clean lamb ready for a sacrifice. तो ऐसे जो छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे भेड़ बकरियों के, उसके ऊपर वो स्टैंप लगाते थे, और स्टैंप लगने का मतलब ये था कि अब ये जो भेड़ और बकरी का बच्चा है वो बलिदान के लिए तैयार है। So this place was the place to send the sacrifice to the temple. तो ये जो जगह थी ये अधिकृत भेड़शालाएं हुआ करती थी जहाँ से भेड़े बकरियां मंदिर में भेजी जाती थी बलिदान करने के लिए। And the 3 shepherds were the 3 persons who were taking and assuring that this is a good sacrifice for the temple. So ये जो चरवाहे हुआ करते थे, ये वो जो भेड़े हुआ करती थी, उनके ऊपर लिटरली स्टैंप लगाया करते थे कि उन्होंने एग्जामिन किया है, उन्होंने देखा है, क्योंकि उन्होंने प्रसूति से लेकर बच्चा बड़ा होने तक उनके पास था, तो वो सब चेक करके भेजते थे कि ये बच्चा क्लीन है, शुद्ध है, इसमें कोई व्यंग नहीं है और ये बलिदान के लिए योग्य है। So now the angel came to those 3 shepherds telling them, go see the ultimate sacrifice in Bethlehem and certify it's okay, pure and clean for everybody. सो ये जो 3 अधिकृत भेड़शाला के मतलब चरवाहे थे, स्वर्गदूत उनके पास आते हैं और उनको कहते हैं देखो एक आखिरी सिद्ध जो बलिदान है
वो इस दुनिया में आ गया है, जाकर चेक करो कि उसमें कोई दोष नहीं है, कोई व्यंग नहीं है, आप जाकर उसको सर्टिफाई करो। So now you know why the shepherds? Yes. Now you know. Let's go see the house of the shepherds. चलो हम लोग